વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરાવતી વખતે કેવી ભાવના કરવી જોઈએ તેનું ભાવ દર્શન કરીશું, કે જેમાં શ્રી હરિરાયજી રચિત નિત્યલીલા અને સહસ્ત્ર શ્લોકી સેવા ભાવનાનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. આપણે અગાઉ ગોપીવલ્લભ ભોગ સુધી ભાવ દર્શન કર્યું હતું અને આપ બધાને ખૂબ જ ગમ્યું, એટલે તાલાવેલી થઈ રહી છે કે જલ્દી આપણે આગળ વધીએ. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મોનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. રાજભોગની ભાવના સૌપ્રથમ નિત્યલીલામાંથી લઈશું. देखो री गोपाल कहाँ है खेलत, कहो जाय जशुमती तो ही बोलत. હે સખીઓ, તમે જઈને જુઓ કે મારો ગોપાલ ક્યાં ખેલે છે. તેને તમે જઈને એમ કહો કે તમને તમારા માતાજી બોલાવે છે. જબ મૈયા કી જાની પ્રીત, આય ગયે ગિરિધર સહમિત. શ્રી ગોપીજન બોલાવવા આવે છે ત્યારે શ્રી માતૃચરણનો સસ્નેહ વિચારી પોતાના મિત્રો ગોપબાલ સાથે પ્રભુ પધારે છે. શ્રી યશોદાજી પ્રસન્ન વદને કહે છે, ભોજન કો બેઠે નંદરાય, તુમ સંગ ભોજન કરહુ આય. હે કૃષ્ણ, ભોજન કરવા તમારા પિતા શ્રી નંદરાયજી બેઠા છે, તમે પણ સાથે ભોજન કરો. બેઠે આય કનક આસન પર, નંદરાય પકરે કરસો કર. અત્યંત ચંચલ એવા શ્રી કૃષ્ણ સુવર્ણના આસન ઉપર બિરાજ્યા છે. શ્રી નંદરાયજી પોતાના હાથ વડે શ્રીજીનો હાથ પકડીને બેસાડે છે. મારા બાળકની પ્રકૃતિ ચંચલ છે, રખે ખેલવા મિશે દોડીને બહાર તો નહીં પધારે ને, તે સમજી શ્રી હસ્ત પકડીને બેસાડે છે. કનક બરન જારી જમુના જલ, ભરી લાઈ જશુમતી અતિ ઉજ્જવલ. શ્રી યમુનાજીની ઉજ્જવલ સુવર્ણની જારી ભરીને શ્રી યશોદાજી લાવે છે. પનવારો જોર્યો વિસ્તાર, તા પર ધર્યો કનક કોથાર. પનવારો કહેતા લીલા પતાઓની પાતળ વિશાલ કરી છે, તે બિછાવીને કનકનો થાળ ધરાવ્યો છે. બેલા છોટે મોટે ધરે, ચમચા રત્ન જડિત તહાં ખરે. સુવર્ણ તથા ચાંદીના નાના મોટા ડબરાઓ સામગ્રીથી ભરીને પધરાવ્યા છે, તેમાં રત્નથી જડેલા ચમચાઓ ધરાવ્યા છે. અગર ધૂપ કીન્હો તાઠોર, હિત સો પ્રભુજી લીનો કોર. સુંદર અગરનો ધૂપ કરીને ભોગ મંદિર પરમ સુવાસિત કર્યું છે. હિત સહિત પ્રભુજીએ કોળિયો લીધો અને આરોગવા માંડ્યા. અતિ સુગંધ ચાવર કો ભાત, આની ધર્યો હે જશુમતી માત. અત્યંત સુંદર ચોખા ભાત સિદ્ધ કર્યા છે. શ્રી માતા યશોદાજી થાળમાં પીરસે છે. ઠાડે મુંગયરુદારી બનાઈ, તાકે સંગ કઢી લે આઈ. છોટા મગ તથા દાળ બનાવી છે અને તેની પાસે સુંદર કઢી પધરાવી છે. મિર્ચન કે કીને બહુ શાક, હિત સો જશુમતી કીને પાક. મિરચનું શાક એટલે કાળા મરી પધરાવી અને બનાવેલું કાળા મરીથી ખૂબ ચટપટું બનેલું શાક તથા બીજા પણ કાળા મરી પધરાવી શાક સિદ્ધ કર્યા છે. પ્રેમ ભાવથી શ્રી યશોદાજીએ અનેક પાક સિદ્ધ કર્યા છે. શિખરને ઓર દહીં કો ભાત, ખાટો મીઠો બળી કો ભાત. શિખરન ભાત, દહીં ભાત, ખાટો ભાત, મીઠો મેવા ભાત તથા વળી ભાત, આમ પાંચેય ભાત સિદ્ધ કરી પધરાવ્યા છે.
तीन भांति की तुरई करी, पापड़ भूंजे तिल बड़ी तरी। ત્રણ જાતના તુરિયા બનાવ્યા, ભરમાં તેલમાં તળેલા અને બાફીને છોકેલા, શેકેલા પાપડ તથા તલની વડી સિદ્ધ કરી પધરાવી છે। ભરતા બેંગન ચકતા કરે, અરવી સુરન સેવ લઈ ધરે। બેંગણના ભરતા તથા બેંગણના ટૂંક ચકતા કર્યા, અરવી સુરણ તથા તળેલી સેવ પધરાવી। કરેલા મોરેલા કંકોડા કરે, ખંડવા ખંડવી ગલકા ધરે। કરેલા મોરેલા એટલે કારેલામાં ચણાનું વેસણ મસાલો મેળવીને પધરાવેલું શાક તથા કંટોલાનું શાક તે પ્રમાણે તથા ખંડવા ખંડવીને તળીને સાજી છે, તેનું નામ ખંડવા તથા ગલકાનું શાક પધરાવ્યું છે। સકર કંદકો મીઠો શાક, પેઠા મેં મિસરી કો પાક। શકરકંદ એટલે સકરિયાનું મીઠું ખટ મીઠું શાક તથા પેઠા કહેતા સફેદ કોળું તેનો પાક બનાવ્યો છે। રાઈતે કીને ઇકીસ ભાંતિ, સંધાને કી કેતિક પાતી। અનેક પ્રકારના રાયતા તથા સંધાણાની પંક્તિ કરીને સાજ્યા છે। બિલ સારું કીનો જુ બનાઈ, જેવત હરી કો મનન અઘાઈ। બિલ સારું કહેતા અનેક પ્રકારના મુરબ્બાઓ સિદ્ધ કર્યા છે, તે આરોગતા તૃપ્તિ થતી નથી, વારંવાર રુચિ ઉપજાવે છે। ભાંતિ ભાંતિ કી ભાજી કરી, બહુત ભાંતિ કચરિયા તરી। અનેક પ્રકારની કાચરી તળી છે તથા વિવિધ પ્રકારની ભાજી બનાવીને સાજી છે। બેંજન બહુ વિધિ ગીને ન જાઈ, બાર બાર જશોદા લાઈ। અનેક પ્રકારની વ્યંજન સામગ્રીઓ શ્રી માતૃચરણ લાવે છે, જેની ગણના ન કરી શકાય તેટલી વારંવાર લાવે છે। પૂરી રોટી લીટી કરી, મિશ્રી રોટી ઘી સો ભરી। પૂરી તથા રોટી તથા લીટી કરી, લીટી કહેતા ઘઉંની તળેલી બાટી, મિશ્રી રોટી કહેતા ઘઉં ચણાના ચૂનમાં મસાલો મેળવી રોટી કરી છે, તેમાં ઘી પણ ઘણું પધરાવી રસબસ્તી કરી છે। લીટીની બનાવટ અદ્ભુત છે, તેમાં ઘઉંનો રવો જલથી બાંધી બાફી નાખી તેને ખૂબ ખૂંદીને ઘીનું મોણ મેળવી રોટી જેવું બની તેની વચમાં 7-8 લવિંગ રાખવા, તે પછી કચોરીની માફક બનાવી તળી લેવી, તેનું નામ લીટી, તે શ્રીજીને બહુ પ્રિય છે। માખન બૂરો પાસ ધરાયો, લૂચઈ લે શિખરન સો ખાયો। માખણ તથા મિશ્રી સાજી છે, લૂચઈ એટલે પૂરી ઉપર બૂરું ધરાવેલું છે, તે લૂચઈ કરી છે, શિખરણ સાથે આરોગતા ઘણો સ્વાદ લાગે છે। સેવ બહુત બુરા સો કરી, સો તો જાય નિકટ લે ધરી। સેવ મીઠી ઘણું બુરું પધરાવીને કરી, તે સૌ સામગ્રીની નિકટ ધરી છે। બડા મઠા કે અતિ રસ ભીને, તીન કુડા અતિ સુંદર કીને। છાશવડા તથા તીનકુડા સિદ્ધ કર્યા છે। તીનકુડા એટલે ચણાનું ચૂન, કઢીની માફક ખટાશ વિનાનો, જળમાં ગોળીને કાળા મરીનો ભૂકો ખૂબ મેળવી, તેમાં લવિંગ તથા હિંગનો વઘાર, લૂણ હળદી સિવાય કંઈ નહીં, તેમાં પલાળેલા ચણા તથા વડી પધરાવી સિદ્ધ કર્યા છે। મૈયા મોકો શિખરન ભાવે, બેલા ભરી ભરી રોહિણી લાવે। શ્રીજી કહે છે કે હે મૈયા, મને શિખરન બહુ ભાવે છે, ત્યારે શ્રી રોહિણીજી બેલા કહેતા ડબરો ભરીને પધરાવે છે। સુરભી ધૃત સો બેલા ભર્યો, સોલે ભાત શિખર પર ધર્યો। ગાયના ઘીનો કટોરો ભરીને સુંદર ભાત ઉપર તે કટોરો પધરાવે છે। ઓટ્યો દૂધ
દહીં કો બેલા, મીઠે આમ અરુ સુંદર કેલા. ઓટ્યો, ઓટેલું એટલે કઢેલું દૂધ તથા દહીંનો કટોરો, મીઠા આમ તથા સુંદર કેળા પધરાવ્યા છે. આમને કો સિરાજુ કીનો, સો તો હરીજુ રુચિ સોલીનો. આંબાનો શીરો સિદ્ધ કર્યો છે, તે આપ અત્યંત રુચિથી આરોગ્ય છે. ખરબૂજાય રૂલીલો મેવા, ઇહ બીધી જશુમતી કીની સેવા. ખરબૂજા અને લીલો મેવો સાચ્યો છે. આ પ્રમાણે શ્રી પિતૃચરણે સેવા કરી, શ્રી માતૃચરણે સેવા કરી છે. છોક્યો મઠા પરમ સુખદાયક, સો તો કેવલ હરિજુ કે લાયક. છોકેલો મઠો પરમ સુખરૂપ શ્રી હરિને લાયક છે. યુ વિધિ લાલન ભોજન કીનો, માત જશુમતી કો સુખ દીનો. આ પ્રમાણે લાલન શ્રી ઠાકોરજીએ ભોજન કર્યું, માતૃચરણ શ્રી યશોદાજીને સુખ આપ્યું. કરી અચવન ઠાડે આંગન મેં, અતિ સુગંધ બીરા આનન મેં. આચમન કરી આંગણામાં ઊભા છે, અતિ સુગંધ બીડી શ્રી મુખમાં પધરાવી રહ્યા છે. પછી શ્રી કર મેં બીરા બહુલીને, સો તો બાટી સબન કો દીને. શ્રી હસ્તમાં બીડા લઈ લઈને સર્વે વ્રજ ગોપી તથા આપના સમાન વયના ગોપોને વહેંચી આપે છે. થાક વિચિત્ર કુંદ કી માલા, લે આઈ પહેરે નંદલાલા. થાક જેનો વિચિત્ર છે એવી મોગરાના પુષ્પની માળા વ્રજ ભક્તો લાવે છે. તે કહે છે કે આપ પહેરો, તે નંદલાલા શ્રીજી આપ ધારણ કરે છે. કર મુરલી અરુબેત ગહાઈ, વ્રજ વનિતા દેખે સુખ પાઈ. શ્રી હસ્તમાં મોરલી તથા વેત્ર કહેતા છડી ધરાવીને વ્રજ વનિતા શ્રી ગોપીજનો નિરખીને સુખ પામે છે. નિરંજન બહુવિધિ સોકીનો, શોભાની રખી વારનો લીનો. આરતી કરે છે તે સમયની શોભા જોઈને શ્રી વ્રજ ભક્તો વારણા લે છે. જો લો હરિ ભોજન કરી આવે, તો લો સહચરી કુંજ બનાવે. જ્યાં સુધીમાં શ્રીજી ભોજન કરીને પધારે છે તેટલા વખતમાં સહચરીઓ કુંજ બનાવે છે. ઓલી ભરી ભરી પહુ પલે આવે, પરમ પ્રીતિ સો સેજ બિછાવે. ખોડા ભરી ભરીને પુષ્પ લાવે છે, પરમ પ્રીતિથી વાત્સલ્યતા પૂર્વક શૈયા બિછાવે છે. ફૂલ કે મહલ ખંભ ચૌબારે, ફૂલન કે કલસા અતિ ભારે. ફૂલના બંગલાઓ, મહેલ અને કલસાઓ બનાવ્યા છે, જેની ચારેય તરફ થાંભલાઓ રચ્યા છે, અનિર્વચનીય રચના કરી છે. ફૂલન કી સૈયા લે રચી, તકિયા ગેંદુવા ફૂલન સચી. ફૂલની શૈયા તથા તકિયા, ગાલ મસૂરિયા, ચાદર વગેરે રાખ્યા છે. સેજ બંદ ફૂલન કે કરે, રંગ રંગ ફૂલન શોભરે. સેજના બંધ કસના ફૂલના કર્યા છે, તે રંગ રંગના ફૂલથી ભર્યા છે. ફૂલન કી ચોલી લે કરી, ફૂલન કી ચોકી લે કરી, તા પર કરવા કુંજા ધરી. ફૂલની ચોકી કરી છે, તેની ઉપર સુંદર રત્ન જડિત કરવા તથા માટીના કુંજા પણ જલથી ભરીને ધર્યા છે. અંગરાગ કે બેલા ભરે, અતિ સુગંધ બીડા તહા ધરે. અંગરાગ કહેતા સુગંધી પદાર્થના કટોરાઓ ભર્યા છે અને અતિ સુગંધિત બીડા ધર્યા છે. પહુપમાલય અતિ સુંદર કરી, સો તો પ્યારી ઉર પર ધરી.
પુષ્પની માળા કરી છે તે બહુ પ્યારી છે, તે પોતાના ઓર પર ધારણ કરે છે. ફૂલન કે પંખા લે આવે, સો તો કમલ નયન કો ભાવે. વ્રજ સુંદરીઓ ફૂલના પંખા લઈને આવે છે, તે કમલ નયનને બહુ પ્રિય લાગે છે. પંખો છે તે તો તાપને હરે છે, અને ફૂલો છે વ્રજ ભક્તોનું સ્વરૂપ છે. સકલ પદાર્થ આગે ધરે, વિવિધ મનોરથ મન મેં કરે. દરેક પદાર્થો આગળ ધર્યા છે અને અનેક મનોરથો મનમાં કરી રહ્યા છે. પોઢે પિય પ્યારી કે સંગ, વિવિધ ભાંતિ બરખત રસ રંગ. પ્રિય શ્રીજી પ્યારીજી શ્રી સ્વામિનીજીની સાથે પોઢ્યા છે, જ્યાં વિવિધ સ્તરના રસરંગ વરસી રહ્યા છે. બહુત ભાંતિ પિય કે સંગ ખેલી, રસ મર્યાદા સબલે પેલી. વિવિધ ભાતે પ્રિયની સાથે ખેલે છે, રસની મર્યાદા સહિત વિહાર કરે છે. સ્ત્રમક અને સુભગ અંગ પર આઈ, રસ ભર પોઢે કુંવર કન્હાઈ. શ્રમના કણો પરસેવાના બિંદુ અંગ પર આવેલા છે, રસથી ભરેલા પોઢ્યા છે. જાલ રંધ્ર વે સહચરી દેખે, અપનો જન્મ સુફલ કરી લેખે. જાલરંધ્રથી સહચરીઓ જુએ છે, અંતરંગ ભક્તો છે તે દર્શન કરે છે. તેમના અનેક મનોરથો સુફલ છે, તેમજ જન્મ સુફલ છે. આ રીતે નિત્ય લીલામાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ રાજભોગની ભાવના દર્શાવી છે. હવે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી સહસ્ત્ર શ્લોકી સેવા ભાવના, કે જેને સહસ્ત્રી ભાવના પણ કહે છે, તેમાં જે ભાવ દર્શાવે છે તેનું ભાવ દર્શન કરીશું. કારણ કે રાજભોગમાં 4 પ્રકારના પદો આવે છે, તેવી રીતે 4 પ્રકારના વ્રજ ભક્તોનો ભાવ તેમાં દર્શાવ્યો છે. તો ચાલો તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. फिर माता की प्रार्थना से नंदालय में राजभोग आरोगे तथा श्री अंग धोकर आचमन बीड़ी लेने के बाद राजभोग आरती हुई. उस लीला का प्रकार 8 श्लोकों से वर्णन करते हैं. माता की प्रार्थना से पिता के साथ में भोजन करने का मन बनाते हैं तथा चंचल नायक प्रभु पिता के पास ऊंचे पाटले यानी पट्टे पर बिराजते हैं. अपने हाथ से भोजन करते हैं तथा अपने मुख कमल को लीप देते हैं तथा अपने पिता के हाथ में से कौर ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं. तीखे तथा कड़वे रस की सामग्री का स्वाद लेते हुए सितकार करते हैं. इससे शोभित हो रहे हैं. क्षण क्षण में उठते हैं, परंतु श्री नंदराय जी की प्रार्थना से फिर बैठ जाते हैं. वस्तुओं को थाली में इधर उधर फेंकने की क्रीड़ा करने लगते हैं तथा कोई वस्तु खेलने में उपयोगी मानकर, जैसे लड्डू को गेंद मानकर उसे उछालकर विनोद करते हैं. बहुत देर से भोजन करने में परायण है. श्री नंदराय जी आपका मुख कमल देख रहे हैं. श्री यशोदा जी अपने दोनों हाथों से प्रभु को श्री नंदराय जी के आंगन में लाते हैं. सखी ने दिए हुए जल से मातृचरण प्रभु के सारे श्रीअंग को धो देती है तथा माता के बारीक वस्त्र से प्रभु अपने अंग को भली भांति पुछवा देते हैं. माता के मुख में से तांबुल ग्रहण करने के लिए उद्यमित मुख वाले हैं, अतः मुख ऊंचा करके माता का चर्वित तांबुल अपने मुख में ले लेते हैं. श्री नंदराय जी एवं मातृचरण कई प्रकार की वार्ता करके प्रभु को लाड लडाते हैं. अपनी गोद में पधराकर श्री यशोदा जी गोपीजन के पास आरती उतराती है. दीपक के उजाले के प्रकाश से श्रीअंग में सर्वमणि इत्यादि शोभित हो रहे हैं. अब दूसरे प्रकार का राजभोग जो व्रज भक्त न्योता देकर सकुटुंब प्रभु को स्वयं के घर पर भोजन करवाते हैं, उसका प्रकार 33 श्लोकों में कहते हैं. अथवा राजभोग की भावना इस प्रकार से करनी चाहिए. श्री गोपीजन भगवान को अपने पिता नंदराय जी इत्यादि सहित निमंत्रण देती है. परमानंद में मग्न हुए प्रभु प्रत्येक गोपीजन के घर भोजन के लिए
अपने पिता, माता, बलदाऊ जी, रोहिणी जी इत्यादि सहित पधारते हैं। बाल भाव के आग्रह से अपने को अत्यंत प्रिय श्री स्वामिनी जी सहित सदा प्रफुल्लित मुखकमल वाले प्रभु गोपिकाओं के घर में पधारते हैं। सुंदर बिछाने पर सिद्ध किए हुए उत्तम आसन पर सभी विराजते हैं। स्वयं अपनी माता की अति प्रिय गोद में प्रेम सहित विराजते हैं। श्री रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए बलदेव जी संग में हैं। उत्तम आसन पर विराजे हुए अपने पिता नंदराय जी की गोद में भगवान भावपूर्वक विराज रहे हैं। सर्व से उत्तम आसन पर विराजे हुए श्री स्वामिनी जी के ऊपर अपना परम आदर है। इस प्रकार अंतर्गृह में भगवान अपने परिकर सहित विराज रहे हैं। श्री गोपीजन उत्तम सुगंधियों से सुगंध युक्त करे हुए वस्त्र तथा आभूषणों से सबको अलंकृत करती है। फिर यथा योग्य अलंकार करने के पश्चात सर्व सहित भगवान का पूजन अर्थात सत्कार करती है। फिर केसर, अगरू, कस्तूरी, घनसार यानी बरास इत्यादि सुगंधि से तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई मालाओं से अलंकृत करती है। वहां आए हुए अपनी सभी स्वामिनियों के आप प्रभु स्वामिनियों से घिर गए हैं तथा गोपीजन अपने हृदय के विविध अनंत भावों से भगवान की भावना करती है। सुगंध सर्वत्र प्रसारित हो जावे इस प्रकार सिद्ध किया हुआ धूप घर में किया हुआ है। अनेक रत्न एवं दीप इत्यादि के प्रकाश से सर्वत्र शोभा हो रही है। अपने गोपीजन ने सिद्ध की हुई सर्व सामग्री के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। अनेक प्रकार के पकवान, शाक, पाक इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। अपने को यानी स्वयं को अत्यंत प्रिय ताजा नवनीत इत्यादि स्वयं देखते हैं। वहां से वापस आकर हरि अपनी माता की गोद में आकर विराज जाते हैं। कंकण के रणकार वाले हस्त कमल से गोपीजन परोस रही है। उनके चंद्र के समान मुख कमल के किरण का निरीक्षण करने के लिए आप चकोर की भांति उत्सुक है। अनंत रस वाली परसी हुई सामग्री के मिश से आप अनेकों रास लीलाओं का सूचन करते हैं। अपनी स्वामिनी के कंकण की ध्वनि कान लगाकर सुनते हैं। उसका कहना मानकर ही आप संपूर्ण सामग्री का भोजन करते हैं। सुंदर वस्तुएं श्रीहस्त में लेकर अपनी माता को इसका स्वाद कैसा है ऐसा पूछते हैं। यह सामग्री किसने सिद्ध की है उसका नाम जानने के लिए प्रश्न करने में तत्पर होते हैं। अपने पिता के साथ पंक्ति से बैठे हुए अपनी माता के साथ भोजन करते हैं। रोहिणी जी के साथ बैठे हुए बलदेव जी के साथ सादर भोजन करते हैं और कभी कभी बालहट से श्री स्वामिनी जी के साथ भोजन करते हैं। इस प्रकार ब्रज में सब जगह जहाँ जहाँ आमंत्रण मिलता है वहाँ पधारते हैं। वहाँ अनंत भाव प्रकट करते हैं तथा यथा योग्य सब सामग्री अंगीकार करते हैं तथा सर्वत्र गोपियां वगैरह पंखा झलती है। श्री गोपीजन को कही हुई गूढ़ संकेत वाली द्विअर्थी विविध वार्ता श्रवण करने में आप तत्पर हैं। अनंत कोटि कामदेव के सौंदर्य के समान आप रूप धारण करते हैं। अपने श्रीमुख पर लगी हुई भोजन की कणिकाएं तथा माखन से आप अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। भोजन करने के पश्चात अति प्रिय सखियों के द्वारा दिए हुए जल से आचमन करते हैं। तत्पश्चात गोपो इत्यादि को अन्यत्र उसी प्रकार यथा योग्य आचमन करवाया। फिर स्वच्छ पान में अति सुगंध युक्त बीड़े सबने खाए। माता ने श्रीमुख पोंछ दिया। तब बगैर बादल वाले स्वच्छ आकाश में स्थित चंद्र के समान मुख की शोभा हो गई। फिर श्री स्वामिनी जी के श्रीहस्त से करी हुई बीड़ी ग्रहण करने के लिए आप उत्सुक हो गए।
इस प्रकार सबके घर में भोजन करते हैं। इस प्रकार भक्तों ने स्वयं समझ लेना चाहिए। फिर सर्वत्र एकांत स्थान में सिद्ध की हुई शैया के ऊपर आप स्वयं विराजते हैं। श्री नंदराय जी तथा श्री यशोदा जी के लिए एक शैया बिछाई गई है। वहाँ भगवान उनके साथ ही विराजते हैं तथा रोहिणी जी के साथ सोए हुए अपने भ्राता बलदाऊ जी का आदर पूर्वक दर्शन करते हैं। एकांत स्थान में श्री स्वामिनी जी की शैया है। उस पर अति गुप्त रीति से पोढ़ना आपको बहुत प्रिय लगता है। अनंत रस भाव वाली लीला सहित रमण करने में आप तत्पर हैं। इस प्रकार श्री स्वामिनी जी के घर में दिन में आप शयन करते हैं। अपने कुटुंब सहित आप स्थिति करते हैं। गुप्त लीला करना आपको बहुत प्रिय है। जब दिन का पिछला प्रहर होता है उस समय आप उठते हैं। अनेक कंदमूल इत्यादि मिश्री द्राक्ष इत्यादि आरोपते हैं। खोए के लड्डू आपको बहुत अच्छे लगते हैं तथा अपने सभी स्वकीय सहित यथा योग्य आनंद प्रदान करते हैं। भक्त ने दिए हुए आचमन तांबुल को आप सो उत्साहित मन में से अंगीकार करते हैं और संध्या काल में दूध भात का भोजन आप स्वयं करते हैं। प्रातः काल के भोजन के बाद आप मस्तक पर पाग धारण करते हैं और पिता श्री नंदराय जी के गोद में विराजते हैं तथा कटिबंध एवं पाग इन दोनों के पल्लों पर बने हुए गुच्छे शोभायमान दिखते हैं। पंक्ति में बैठकर अपने भक्त ने दिया हुआ स्वच्छ तांबूल आरोपते हैं। उसी समय जिस गोपी ने निमंत्रित करके पधराए हैं वह सुंदर आरती करती है। तब आप बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर सभी गोपियां भगवान के समस्त कुटुंब को नमस्कार करते हैं और उसके बाद अपने परिकर सहित एवं पिता नंदराय जी इत्यादि के साथ अपने घर पधारते हैं। श्री पुरुषोत्तम अपनी पुष्प की माला इत्यादि प्रसाद व्रज भक्तों को देते हैं और इस प्रकार सर्व व्रज भक्तों के घर में प्रतिदिन प्रभु का सत्कार होता है। फिर तीसरे प्रकार का राजभोग चोरी से व्रज भक्त के घर गुप्त रीति से पधार कर आरोपते हैं और सर्व सुख प्रदान करते हैं। उस लीला का वर्णन 29.5 श्लोकों से करते हैं। इस प्रकार एक प्रकार की राजभोग की भावना कही। अब परोक्ष से व्रजराज भोग करते हैं वह नीचे लिखे अनुसार कहता हूँ अथवा राजभोग की भावना दूसरे प्रकार से कही जाती है। गोपीजन के प्रत्येक घर में घर मालिक हो ऐसे निर्भय होकर पधारते हैं। चोरी के बहाने से गोपी के सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनसे संपादन की हुई सर्व षट रसात्मक वस्तुओं का भोग तथा भोजन उसकी विविध प्रकार की प्रार्थना से संतुष्ट होकर करते हैं। उस गोपी ने अपना उत्तरीय वस्त्र बिछाकर उत्तम आसन निर्माण किया। उसके ऊपर अगरू सत्व इत्यादि सुगंधि युक्त वस्त्र इत्यादि से भूषित और अनेक आभूषणों से युक्त सुंदर अंग वाले प्रभु उस पर विराजते हैं। अत्यंत सुंदर पुष्पमालाओं से आप विशेष प्रकार से शोभायमान हैं। आपके मुख्य स्वामिनी जी बाईं और विराज रही हैं, जिससे वे स्वयं सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उस गोपी के घर के आंगन में रक्षा के लिए बलदेव जी तथा गोप बालकों को रखा है तथा अपने प्राण प्रिय श्री गोकुल नायक को भीतर पधराते हैं। पहले कहा है ऐसे धर्म वाले अर्थात बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था की लीला करने वाले तथा किशोर अवस्था में बाल लीला करने वाले विरुद्ध धर्माश्रयी व्रज के जीवन सुंदर हित करता प्रभु को अपनी सिद्ध की हुई सामग्री वे परोसती हैं। विविध प्रकार के मसाले वाली पाक पकवान वाली सर्व सामग्री का निरीक्षण रति रमण से चंचल नेत्र वाले प्रभु करते हैं। सर्वांग सुंदर प्रभु गोपी की भावना करने के लिए तत्पर है और जो वस्तुएं परोसी है उनके समान रति लीला की भावना करते हैं।
गोपीजन अपने नेत्र में विलसित होने वाले कटाक्ष से भगवान की पूजा करती है। उसके झनकार करने वाले कंकण से युक्त बाहु के मूल में प्रभु के सुंदर नेत्र लग गए हैं। बाल लीला करने के बहाने से स्वयं की हुई क्रिया को गुप्त रखते हैं। गोपीजन के मुख चंद्र के शीतल किरण का आश्रय प्रभु करते हैं। हृदय के उत्कट उत्साह वाले हास्य रस के समुद्र रूप स्वयं है। युक्ति वाले रसोक्ति से भरपूर वक्रोक्ति वचनों में आप स्वयं बहुत चतुर हैं। श्री स्वामिनी जी के मुख कमल के सौंदर्य पर दृष्टि की वृष्टि विलक्षणता से करते हैं। हृदय में उत्पन्न होने वाले विविध भाव से सारे अंगों में रोमांच होता है। मिश्री युक्त स्वच्छ ताजा नवनीत श्री हस्त कमल में धारण किया है। सुंदर भात, चमकती पीली दाल आरोगने में स्वयं तत्पर है। गाय के माखन से मिश्रित कौर ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। एकांत में रहकर जो वस्तु आरोगने की प्रार्थना गोपीजन करती है, उन वस्तुओं का भोग आप करते हैं। मोती के गुच्छे वाले लाल रंग के छीके यानी शीका में चांदी के बड़े पात्र में रखा हुआ ताजा नवनीत स्वयं आरोगते हैं। उसके पास रखे हुए सुवर्ण के पात्र में सुंदर मिश्री का समूह है। सुंदर ओटा हुआ, शक्कर मिला हुआ, इलायची केसर इत्यादि डाला हुआ दूध वे पुनः पीते हैं। दूध के पात्र में सोने की कटोरी रखी है, उससे सितकार सहित दूध पीते हैं। खोवे के लड्डू विनोद से हाथ में उछालते हुए कृपा राशि भगवान आरोगते हैं और श्री गोपीजन के मुख के दर्शन करते हुए स्वयं श्री कृष्ण चकित लोचन वाले हो जाते हैं। उनके पास श्याम रंग के छीके में सुंदर मृतिका के पात्र में ढकी हुई भैंस के ओटे हुए दूध की मलाई हरि अपने मुख कमल में रखते हैं। उसके आगे छीके में ककड़ी के बीज के एक एक पूरा मुंह में रख सके ऐसे लड्डू धरे हुए हैं, वे प्रभु अंगीकार करते हैं। नए मृतिका के पात्र में रखा हुआ मिश्री, इलायची, लौंग, बरस से मिश्रित दही स्वयं आदर पूर्वक मुख में धरते हैं। फिर सुवर्ण के छीके में रखा हुआ बहुत स्वाद वाला रात्रि को धनीभूत बंधा हुआ दही तथा छाछ साथ में आप आरोगते हैं। चित्र विचित्र छीके में रखे हुए गेहूं के मोदक, मठड़ी इत्यादि तथा चने के बूंदी, मोहनथाल इत्यादि तथा गिदड़ी के मनोहर इत्यादि बने हुए पकवान विशेषता से देखकर स्वयं आरोगते हैं। ऊपर बतलाया उस सिक्के से अलग पद्मराग के सिक्के में 2 मृतिका के पात्रों में 2 प्रकार के श्रीखंड धरे हुए हैं, उनको आप ग्रहण करते हैं। उसके आगे सिक्के में रखा हुआ नींबू, बिजोरा, केरी, अदरक, केले इत्यादि का बना हुआ हितकारक अचार यानी संधाना आरोगे। छीके पर धरी हुई वस्तुएं ग्रहण करने के लिए उपयोगी साधन बाजोट, उलूखल, पात्र इत्यादि धरे हुए थे। उसकी मदद से फलात्मक प्रभु ने सर्व वस्तुएं अंगीकार की। फिर दूसरे सखड़ी के 6 रस वाले दाल चावल इत्यादि पदार्थ जो केवल भगवान के ही आरोगने के लायक थे, उन्हें सुंदर भाव सहित भगवान ने आरोगे। इस प्रकार प्रत्येक स्वामिनी के घर में भगवान भोग करते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। फिर आपने की हुई लीला को छुपाने के लिए चोरी की राजभोग की लीला छुपाने तथा व्रजभक्त इस लीला को छुपाने के लिए ठपका देने आते हैं। इसे 10.5 श्लोकों की सेवा कहते हैं। पूर्व में श्री स्वामिनी जी ने सिखा रखा था। इस प्रकार आप बछड़ों को छोड़ देते हैं। अपनी लीला को छुपाने के लिए सोए हुए बालकों को चिमटी देकर जगा देते हैं और जो वस्तु आपके योग्य न हो ऐसे दही इत्यादि के पात्रों को फोड़ डालते हैं। एकांत की लीला छुपाने के लिए
बाल भाव का भोलापन बतलाकर भाग जाते हैं। अपनी उम्र के बालकों तथा बलदेव जी के साथ नृत्य करने में तत्पर हो जाते हैं। श्री स्वामिनी जी ने दिए हुए तांबूल आरोपते हुए मुख में से रस झरता है। वह आपके अधर पर आता है। बाल लीला करते हुए ब्रज के प्रिय प्रभु कूदते हैं। मुख के ऊपर नवनीत लगा हुआ है, जिसके श्वेत कलंक युक्त श्यामचंद्र जैसे आप शोभा देते हैं। आपको नित्य नवनीत प्रिय है। नवनीत के लिए चोरी करते हैं। बलदेव जी तथा अपने गोपों की अपेक्षा चोरी करने में अधिक उत्साह वाले हैं। चोरी की राजभोग की लीला छुपाने का चरित्र और ब्रजभक्त इस लीला को छुपाने के लिए ठपका देने आते हैं, उसका प्रकार 10.5 श्लोक से कहते हैं। अपने भक्त के चित्त हरण करने के लिए वेणुनाद करने में चतुर हैं। श्रीदामा के कंधे पर श्रीहस्त रखकर उसके कान में छुपी बात करते हैं। विविध प्रकार की क्रीड़ा करने में आसक्ति वाले धीरे धीरे अपने घर पधारते हैं। अपनी वेणुनाद आदि लीलाओं से अपनी प्रिया के मन को आकृष्ट करते हैं। ठपका देने के बहाने से आई हुई गोपिका का दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बलदेव जी इत्यादि से अपनी लीला छुपाने के लिए तथा उनको और अपनी यशोदा माता को अपनी साधुता को बतलाने के लिए भय का अनुकरण आदर से करते हैं। मुख नीचे करके तिरछी नजर से देखते हैं। प्रभु एवं गोपी परस्पर अपने चरित्र का स्मरण करके उत्साह में आ जाते हैं। मैं ठपका देने के लिए आई, इसलिए अब श्री ठाकुर जी मेरे घर पुनः नहीं पधारेंगे, ऐसी शंका से डरी हुई गोपी को मैं आऊंगा, तो डरना मत, ऐसी सूचना दृष्टि से करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। गोपी का उलाहना यानी ठपका सुनकर यशोदा माता प्रभु को शिक्षा यानी सीख देती है। यह 10 श्लोकों से कहते हैं। अपने पुत्र के चरित्र सुनकर आनंदित हुए माता की गोद में स्वयं विराज रहे हैं। श्री यशोदा जी प्रभु को अपनी गोद में बैठाकर गोपी के घर जाने के विषय में शिक्षा दे रही है। हे पुत्र, पराये घर में चोरी करने के लिए सर्वथा नहीं जाना चाहिए। इससे लोक में अपकीर्ति होती है और लोग मेरी निंदा अवश्य करते हैं। वे लोग ऐसा कहते हैं कि इनके घर लड़के को खाने को नहीं मिलता है। तुम्हारे पिताजी के यहाँ सैकड़ों गायें हैं। श्री नंदराय जी व्रज के राजा हैं। उनके पुत्र का ऐसा चरित्र योग्य नहीं है। बालकों को अपने घर बुलवाकर अपने ही घर में खेलना चाहिए। हे बाल, तुझे जो जो वस्तु चाहिए वह अथवा चाहे जितनी कीमती होवे वह मेरे पास से मांग लेनी। भोजन एकांत में ही करना चाहिए, अन्यथा दूसरी जगह करने से निश्चित रूप से तुम्हें नजर लग जाएगी। तुम्हारे ऐसा सुंदर रूप को बाहर निकालना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें मेरी दृष्टि के समक्ष आंगन में खेलते हुए देखने की इच्छा करती हूँ। तू मेरा एकलौता पुत्र है, बहुत लाडकवाया यानी लाडला है। अतः घर घर जाकर खेलने में आसक्त हुए तुम्हें इस प्रकार अटकाना पड़ता है। दीवार इत्यादि ऊंची जगह पर नहीं चढ़ना चाहिए, उस पर से कूदना भी नहीं चाहिए। किसी अनजान के साथ संग नहीं करना चाहिए। गाय के सींग नहीं पकड़ने चाहिए। दूध दही तो कौन सी बड़ी वस्तु है जिसके लिए प्रतिदिन ये गोपिकाएं लाज छोड़कर नित्य मेरे घर आकर ठपका देती हैं। लाला, तुम्हारे घर पर क्या खोट है? कोई कमी है? हे दयानिधे, मुझ पर दया करो, अब कहीं मत जाना। भगवान माता को प्रत्युत्तर देते हुए उसे 15.5 श्लोकों से कहते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी माता के द्वारा दी हुई शिक्षा यानी सीख को ध्यान देकर सुनते हैं। सिर नीचा कर रखा है, यह देखकर गोपिकाओं के मुख कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। हे माँ, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, ये गोपिकाएं झूठ बोलती है। आपने उनका कहना कभी भी सत्य नहीं मानना चाहिए। ब्रज के आंगन में मैं गोप बालकों के साथ खेलता हूँ,
तब गोपिकाएं स्वयं मुझे पकड़ कर ले जाती है और आपके पास आकर ऐसा झूठ बोलकर ठपका देती है, हे माँ, जैसी आपकी आज्ञा है ऐसा ही मैं करता हूँ। व्रज के आंगन के बाहर ही बालकों के साथ खेलता हूँ। बलदेव जी से पूछ लो कि मैंने किसी भी दिन किसी भी जगह पर चोरी की है। ये बालक भी मेरे साक्षी हैं, उन्हें बुलाकर पूछो, हम तो खेला ही करते हैं। ये गोपिकाएं तो झूठ बोलती हैं। हे माता, प्रातः काल तो हमने भोजन किया होता है, फिर भूख कहाँ से लगे कि चोरी करने को जावे। हम तो सदा ही तृप्त हैं, आप तो काम ही हैं। मुझे भूखा कहने वाली ये गोपियां कपटी मायावादी हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के चतुराई के वाक्यों से माता को उत्तर देते हैं, अनंत प्रकार की लीला करते हैं, तो भी चतुराई से उन्हें छुपाते हैं। भोले भोले वचनों से स्वयं ने किए हुए बड़े बड़े कार्यों को विस्मृत करवा देते हैं। ऊपर कही है ऐसी लीला हमेशा किया करते हैं। गोकुल की युवतियों के स्वयं स्वामी हैं, दुख के समुद्र का हरण करने वाले हैं, अपने धर्म एवं अपने बल का स्मरण करने वाले हैं, निसाधन ब्रज भक्त का भली भांति उद्धार करने वाले हैं, गिरिराज के ऊपर तथा कंदरा में रहने वालों के आश्रय रूप आप हैं, केवल अनुग्रह पर आधार रखने वाले के आप फल रूप हैं तथा अविलंब फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भावात्मक गोपिका के भाव रूप अथवा गोपिका के भाव से भावात्मक प्रभु के रूप की सदा भावना करनी चाहिए। चौथे प्रकार के राजभोग की वन की लीला, उसमें प्रथम प्रभु वन में भूखे हो गए होंगे, ऐसी भावना से श्री यशोदा जी विरह से विकल होकर भोजन की सामग्री सिद्ध करके अंतरंग गोपी को सीख देकर सामग्री देकर वन में भेजती है। उस लीला का प्रकार 16 श्लोकों से करते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से राजभोग की भावना कैसे करना, यह अब कहते हैं। अपने प्रिय पुत्र प्रातः काल में गाय चराने कल के लिए वन में पधारे हैं, अतः अब उसे भूख लग गई होगी। ऐसा स्मरण होने से यशोदा जी अत्यंत व्याकुल चित्त वाले हो गए हैं। प्रभु प्रातः काल में पधारे हैं, अब तो मध्याह्न हो गया है, अतः उत्सुक होने वाली माता पुत्र को अति प्रिय आरोग्य की वस्तुएं भली भांति तैयार करने में तत्पर हो गई है। अपनी अत्यंत स्नेह वाली अंतरंग सखियों को बुलाकर उनसे घिरी हुई माता भात, दाल एवं विविध प्रकार के पकवान, व्यंजन इत्यादि तैयार करती है। विविध स्वाद वाले रुचिकर रस तथा दूध की बनी हुई वस्तुएं तथा द्राक्ष, मिश्री, खोपरा डाली हुई मीठी वस्तुएं विशेषता से सजाई। टेटी, केरी, अदरक, नींबू, बिजोरे इत्यादि के स्वाद वाले अचार, ये सब वस्तुएं श्री यशोदा जी ने अपनी अंतरंग गोपी को बुलाकर उसे अपने साथ रसोई घर में ले जाकर अपने पुत्र को जो जो वस्तु प्रिय थी वे सब वस्तुएं माता ने स्वयं सिद्ध करके ढक रखी थी। वे वस्तुएं उस गोपियों को पुनः उनके नाम ले लेकर बतलाकर फिर पहले की भांति ढक कर सजाकर रख दी। अन्न की व्यंजनादिक पकवान, गोरस इत्यादि सर्वोत्तम सामग्री सैकड़ों मनोरथों को करने में आदर पूर्वक सिद्ध की जा सके, वह सब आपने यानी माता जी ने कर रखी थी। उतनी सभी उत्तम वस्तुएं सुवर्ण के तथा चांदी के पात्रों में एक एक के साथ न मिल जाए इस प्रकार जमा दी। पुत्र के ऊपर अत्यंत प्रेम आ जाने से स्तन में से दूध झरने लगा, स्वर गदगद हो गया, नेत्र में आंसू भर गए तथा नेत्र कमल बंद कर लिए, शरीर में रोमांच हो गया, सभी अवयव शिथिल क्रिया वाले हो गए। अपना पुत्र संध्या समय व्रज में वापस आएगा, इसकी भावना करती हुई इस प्रकार कहने लगी। मेरा पुत्र अपने गाय की रस से व्याप्त केश वाला, प्रकाशित होने वाले मुकुट वाला, आलस्य युक्त नेत्र वाला, गेरू इत्यादि धातु से चित्रित
पसीने के बिंदु रूपी मोती के समूह से सुशोभित, अधर में से झरने वाली सुधा से युक्त और वेणु को भरपूर करने वाला, नृत्य से हिलने वाले चकचकित 2 कुंडल वाला मुखारविंद मुझे कब दिखावेगा? हे गोपी, ये सभी पदार्थ दूसरे की दृष्टि न पड़े इस प्रकार से संभाल कर ढक कर रखना। श्रीधामा को अथवा कमल नयन कृष्ण को बुलाकर सब वस्तुओं के नाम लेकर उसे बतलाना और कहना कि ये खेलने के कपड़े अब निकाल डालो, ताप में मत बैठो। ऐसा कहकर आग्रह पूर्वक तुम्हारे पास बैठाकर उसको भोजन करवाना। वह गोपी सामग्री लेकर वन में आ जाती है। उस समय उसके मनोरथ तथा प्रभु के दर्शन करके उसकी जो अवस्था हो गई तथा उसका प्रभु के साथ संवाद हुआ और फिर रमण जिस लीला के प्रकार से हुआ उसे 23 श्लोकों से कहते हैं। जिस व्रजवधु को माता ने इस प्रकार सब कुछ कहा था, वह मन में हर्षित होती हुई हंसते मुख से चली प्रभु के भोजन की वस्तुओं को ग्रहण करने में तत्पर हो गई। मन में अपने स्वामी के अंग के संगम की भावना करने लगी। वहां जाकर मैं ऐसा करूंगी, ऐसे ऐसे विचार करने लगी। हृदय में उत्पन्न होने वाले विलास के भावों से परवश होकर लज्जा का त्याग करके कंधे पर सामग्री से भरी हुई कावड़ धरकर एक हाथ में सामग्री का पात्र लेकर हर्ष से श्री गोकुलेश के गुणगान करते हुए चली। सब स्थानों पर वन को पुष्पों से खिला हुआ देखकर काम से पीड़ित हो गई। लीला से नित्य प्रभु के साथ अंतररमण करने वाली प्रिया प्रभु का वेणुनाद सुनकर शिथिल तथा गतिभंग हो गई। जैसे तैसे करके वह गोकुल नायक के पास आई। अपने स्वामी का अत्यंत उच्च स्वर से गान करती हुई प्रभु थे वहां आई और उसने अपने प्रिय को बुलाया। प्रभु का नाम ग्रहण करने से अत्यंत आनंद से इस प्रिया ने पति को वश कर लिया। सर्वांग सुंदर प्रियतम के मुख कमल के दर्शन से प्रिया को स्तंभ भाव उत्पन्न हो गया और जैसे चित्र में चित्रित हो ऐसे स्थिर हो गई। प्रियतम के मुख का दर्शन करती हुई कुछ भी नहीं बोल सकी। कृपात्मा प्रभु ने कहा, हमारे लिए यहाँ क्या लाई है? प्रिय के संभाषण से उस अबला को फिर से बोलने का बल प्राप्त हुआ। गोपी कुछ बोली, हे हरि, आपकी माता ने आपके लिए जो सामग्री भेजी है वह लीजिए। क्या क्या भेजा है? ऐसा बोलते हुए कृष्ण उसके समीप आए। तू मेरे लिए क्या लाई है? यह स्पष्ट बोल। यह तो माता ने भेजा है, परंतु तेरा क्या लाई है वह कह दे प्रिय। हे नाथ, मैं मेरा सर्वस्व लाई हूँ। ऐसे मंदहास्य से सुशोभित गोपी बोली, हे गोकुलेश, हे कृपानिधि, आपसे क्या छुपाने का है? इहलोक एवं परलोक सब कुछ आपको अर्पण किया है, उसे ग्रहण कीजिए। तब प्रभु हास्य सहित दृष्टि से बोले, हमको वह दो। गोपी बोली, हे बाल, मजाक क्यों करते हो? आपका वचन सत्य करिए। प्रभु बोले, सत्य कहाँ है? गोपी बोली, आपकी शरणागति में सत्य है। तब प्रभु बोले, मेरे चरण में सत्य है तो तू मेरे साथ संबंध कर। तब गोपी बोली, कुलांगना को आपके साथ संबंध होना दुर्लभ ही है, यानी कठिन है। तब प्रभु बोले, हे प्रिय, मैं सत्य ही कहता हूँ, तुमको ऐसा ही करना उचित है। तब गोपी बोली, बालक देख रहे हैं, उनके सामने कुल स्त्री को ऐसे वचन क्यों कहते हो? तब प्रभु बोले, वे बालक हैं इसलिए वे देखे, इसमें कोई दोष नहीं है। अथवा तुम कहो तो मैं इन्हें दूर कर दूं। वे सब अपने क्रीड़ा में आसक्त हैं और कुछ देखते नहीं हैं, परंतु हे सुंदरी, सुनो, इसलिए वे कुछ देखते नहीं हैं। यहाँ कोई बात की चिंता नहीं है। फिर तुम मेरे लिए ही यहाँ वन में आई हो और कहती हो कि यह सब तुम्हारा ही है, तो
जो मेरा है वह सर्व मुझे दे, दीनता को निकाल दे। इस प्रकार के वचनों को बोलकर ब्रज भक्त के मन को वश में कर लिया। तब उत्कंठा से आकुल व्याकुल होने वाली गोपी अधिक देर तक रह न सकी। उन दोनों के सैकड़ों मनोरथ उस समय जो मन में थे, ऐसी प्रिया और प्रीतम की रति अत्यंत उद्रिक्त हो गई तथा कोई क्रम नहीं रहा। ऐसा रसात्मक रमण हुआ। प्रथम कटाक्ष से परस्पर मुखारविंद का अवलोकन हुआ, फिर सब रस का उद्बोध करने वाला हास्य हुआ, फिर अंग स्पर्श हुआ, फिर सखियों के युद्ध से भरे हुए निकुंज में दोनों पधारे, फिर बिछाई हुई पुष्प की शैया के ऊपर दोनों विराजे, फिर परम उदार चरित्र वाले प्रभु एकांत में शोभा देने लगे, फिर नित्य बैठने के स्थान में आकर श्रीदामा वगैरह गोप बालकों को जोर से आवाज देकर बुलाया, हे गोप बालकों जल्दी आओ, देखो माता ने भोजन के लिए घर से वस्तुएं भेजी हैं, वे आई हैं पकवान, मसाले, षट रस वाला अन्न, आचार इत्यादि के साथ दूध, दही, श्रीखंड, माखन इत्यादि मेरी गोपी लाई है, वह लेओ खाओ। अब बहुत धूप हो गई है, अतः जलाशय के पास में वृक्ष की छाया के नीचे शिला पर बैठो। ऐसा कहकर प्रभु मित्रों के साथ अद्भुत रीति से नृत्य करने लगे। श्रीदामा के सिर पर सामग्री का पात्र रखकर उसे आगे करके सब उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस समय भोजन की इच्छा से उत्सुक होने वाले ये बालक रास्ते में वेणु बजाते बजाते दौड़ने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे और इस प्रकार शोभा युक्त होने लगे, परस्पर तालियां देने लगे, उनके मुख कमल हास्य करने लगे, बारंबार कूदने लगे। इस प्रकार सभी गोप बालक कौतुक करने लगे। जैसे तारे चंद्र के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार गोपों ने श्री कृष्णचंद्र को घेर लिया। जिनको चलना प्रिय है, ऐसे वे बालक अपने मन के आनंद से विनोद करने के लिए चले। जल वाले तथा छाया वाले पहले निश्चित किए हुए स्थान में जाकर फलरूप कृष्ण के साथ वे बैठे। गोल कुंडाला करके बीच में श्री कृष्ण को अपने नायक करके बैठाया। पलाश के नए पत्ते एकत्रित करके लाए। जल्दी से उन पत्तों से एक बड़ी एवं सुंदर पत्तल बनाई। उसके ऊपर चारों तरफ सब मसाले इत्यादि रखे। उसके अंदर सखड़ी रखी, उसके पास में मूंग धरे और उसके पास घी का पात्र रखा। अलग अलग तरह के पकवान बड़े बड़े दोनों में रखे। मिट्टी के पात्र में दूध, नवनीत बंधा हुआ दही धरा। वन में से लाए हुए फल भी चारों ओर पास में रखे। केरी, द्राक्ष, बोर, नींबू, जाम्बू, मौसम्बी, बिजोरे, टेटी इत्यादि सर्व ऋतु में प्राप्त होने वाले सब फल धरे। प्रभु स्वयं फल रूप है, अतः अपने संबंध से सर्व को सब प्रकार से फल संबंधी करे। गोप वेश से वे स्वयं सबके मध्य में विराज कर सबको आनंद प्रदान किया, यानी आनंद प्रदान करने लगे। हस्त में मुद्रिका धारण की है, रत्न जड़ित कंकण इत्यादि से शोभित हस्त से स्वयं आरोगने लगे। अमृत से अधिक अपने अधर सुधा के रस वाले पदार्थों को सर्व को देने लगे। हंसी के वाक्यों को बोलकर स्वयं हंसने लगे और दूसरों को भी हंसाने लगे। गोपी के हस्त कमल के स्पर्श का स्मरण होने से उत्साह से भोग करने लगे। अपने भाई बलदेव जी तथा गोप बालकों सहित विलास युक्त लीला करने लगे। कभी तो शिला के ऊपर दही भात रखकर भोजन करते हैं और बीच में श्री यमुना जी का अतिशय स्वादिष्ट शीतल जल पान करते हैं। अपने घर से आए हुए तांबुल चबाते हैं तथा अपने मित्रों को भी यथारुचि तांबुल देते हैं। फिर पहले जिस क्रम से क्रीड़ा की थी उसी प्रकार क्रीड़ा करने लगे। निकुंज में छोटी तालावड़ी के पास एकांत में क्रीड़ा को उत्सुक हो गए। दोपहर को ब्रज भक्त कुंज भवन में प्रभु के लिए सिंहासन और शैया सिद्ध करते हैं तथा अनवसर में उचित सामग्री इत्यादि सब साधते हैं। उसका
प्रकार 31 श्लोकों से वर्णन करते हैं। એટલે કે ઠાકોરજીને રાજભોગ આરોગાવ્યા પછી જે અનુસરની ભાવના છે તેનો શું ભાવ છે તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। આટલી સુંદર રાજભોગની રસરૂપ ભાવના આપને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમી હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને પણ શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ। હવે ત્યારબાદ આવે છે રાજભોગ આરતી કા આર્યા। તે આપણે ફક્ત ભાવાર્થ જોઈશું કારણ કે આ પુસ્તકમાં લખેલું છે કે વૈષ્ણવોનો આ આર્યા બોલવાનો અધિકાર નથી। આ તો ભાવાર્થ જોઈએ તો તેમાં શું ભાવ છે તે આપણે જાણી શકીએ। श्री व्रजराज रूप श्री नंदराय जी के उत्तम घोष गोकुल में विराजमान वरणीय सहज आकर्षक करे, ऐसे रूप को धारण कर धरणी पर रमण योग्य उत्तम लक्षण से युक्त श्री लक्ष्मी ये रमण के साथ रमण परायण परम आरती को हरवे में समर्थ विभ्रम करावे वाले हास्य ते युक्त व्रजराज नंदन में मेरी मति रति हो। मकराकृति कुंडल से सुशोभित मुखवारे जो है गान परे अति उत्तम ध्वनि ते युक्त नुपुरन की हृदयंगम होवे वारी गति जो भूतल के ताप को तो हरे ही है, साथ में शंकर इंद्र आदि देवन के हूँ मोह रूप गान को बढ़ावे है, ऐसे ब्रज महेंद्र नंदन में मेरी प्रीति हो। परम प्रिय तो जिनको गोपवधु है सो दयायुत होय, सखान के हूँ ताप को दिवस में हरे है, वविन के संग सदा जो विहार में परायण है, तीन श्री कृष्ण में मेरी रति हो। व्यापक वेणुनाद रूप विनोद में परायण स्मित युक्त कथन ते परिचित को जो हरण करे है, सो विद्वत जन जिनकी कथा करे है, ऐसे गुणन के खान रूप चरण युगल वारे प्रत्येक युगल गोपिन में विद्यमान होय, सुंदर रति विहार आदि में परायण व्रजराज के पुत्र में मेरी रसात्मिकन रति होय। इति श्री विठ्ठलेश्वर विरचिता राजभोग आरती कार्या। ત્યારબાદ છે संध्या आरती कार्या। श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत सागर में वृद्धि करवे वारे स्वमुख चंद्र के किरण अंते वर्णित कृष्ण कथा के रसिक शास्त्र वचनामृत कहवे में परायण अत्यंत आदरणीय चरणारविंदम वारे चरणन में वंदन करवे वारे तप्त यानी ताप युक्त जनन के ताप को जननी के घर में आवते भये हरे है, महादेव जी द्वारा संहार पावते जीव पर्यंत को हूँ सो भगवत कथा ते गुणित बनाए दास रूप में वरण व्यवहारे। श्रेष्ठ यानी मदमस्त हाथी के मान को हरवे वारे चालते युक्त रमण योग्य रस के महासागर रूप रास रस के रसिक रस भरित नेत्र कमल वारे अति रणकार युक्त वेणु निनाद में रत है, ऐसे आप। कामदेव केवी मोहक रूप को धारण करवे वाले परस्पर गलबाही करते बलदाऊ के भारियुत अथवा गोवर्धन के भारियुत भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्रोक्त लास्य नृत्य को भावभंगिमा को धारण करवे वाले जिनके श्री चरणन में गिरिंद्र यानी गोवर्धन भी रत है नत है, ऐसे श्री वल्लभ तनय तो श्री बलराम कृष्ण व श्रीमद गोपीनाथ जी व श्री विठलनाथ जी में मेरी रति हो। यहाँ वल्लभ को एक अर्थ गोप लियो गयो हो सके है, अतः यह आर्या उभयात्मक जाननी अर्थात दो आचार्य आत्मज परक व दो नंद गोप सुत परक माने जावे। इति श्री विठलेश्वर विरचिता संध्या आरती का कार्य। ત્યારબાદ છે शयन आरती कार्य। शरणागत के भय के निवृत्ति में परायण प्रतिवादियों के पक्षन रूपा अंधकार किंवा जो प्रभु संबंध में बाधक रूप अंधकारात्मक अज्ञान है सो ताके सूर्य रूप निधि रूप सहस्त्र लक्ष्मी ते सेवित चरण कमल है, जिनके युग धर्म को निवृत्त कर संयोगात्मक काल को प्रगटावे वाले। बाल भाव श्री प्रभु उत्तम मदयुत श्री गोपी जनन यूथन के स्तनन को नक्षत करवे पवारे।
श्री गोपी जनन के स्तनस्थ केसर ते लिपे भय विशाल हृदय वारे। गोकुल वासिन के हृदय में विराजमान भक्त जनन के संचित पुण्यन के परम फल। निज भक्तन को फलदान करवे में परायण अति समर्थ भुजदंड ते गोपी कुचन के अग्रमणि धरवे वारे। या मणियुत शोभित श्री हस्त में गोवर्धन धारण करवे वाले। श्रेष्ठ गोपिकान के युद्ध ते आवृत श्री कृष्ण को वंदन। आवृत गोपीन के संग रास में मग्न युगल में निनादित वेणु युक्त व पुष्टि भक्तन के शिरास्त कर कमल वारे व वीण श्री हस्तनंते यदुकुल के शत्रुन को जिन्होंने नाश कियो है ऐसे व्रजाधीप को वंदन। शत्रु समूह रूप सर्पों के अभिमान को हरवे वाले महादेव जी ते पूजित रमण योग्य चरण कमल वारे। चरण कमल द्वय के पूजन ते जिन महादेव कृत्य कृत्य भये व भक्ति रूपी रस जिनके नखचंद्र में रहे हैं। श्रृंगार रस्ते पूर्ण गोप वधुन के शरण रूप शरणागत गोप वधुन को अभय देवे वारे। भयातुर करवे वारे समूह के शिरन को हरवे वारे। रक्षक रूप तलवार को धरवे वारे। पृथ्वी पर किए भय पुण्यन के परम फल है जो ऐसे। स्वभक्तन को फल देवे के लिए जिन्होंने दुष्टन को मर्दन कियो परिस्व चरण प्रताप वे वीन दुष्टन को हो मोक्ष कियो। उत्तम मयूर किरीट युक्त श्री मस्तक पे जिन्होंने ग्रथित केश में पुष्प धराए हैं। बीन व्रजाधिपति लक्ष्मीपति मथुराधिपति को वंदन करूं हूँ। इति श्री અહીં રઘુનાથજી લખ્યું છે, ખબર નહીં બાકી આ બધા આર્યા ગુસાઈજી રચિત છે એમ સાંભળ્યું છે। હવે આવતા પાઠમાં આપણે શ્રી ગુસાઈજી રચિત યમનાષ્ટપદી જે સ્નાન યાત્રાના દિવસે બોલવામાં આવે છે જ્યારે ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવાતું હોય છે। 108 ગાગરથી ઠાકોરજીને ત્યારે સ્નાન કરાવાય છે નાથદ્વારામાં, ત્યારે આ અષ્ટપદી બોલાતી હોય છે। તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।